آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8 باب اور اس کی 31ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ رومنس چیپٹر 8 فرام ورس 31۔ یہاں خداوند کا بندہ مقدس پولوس رسول یوں تحریر فرماتے ہیں: پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا، اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے جو پڑھا اور سنا گیا۔ خداوند ہمیں اس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے، آمین۔ دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے زندہ جلالی ابدی آسمانی باپ، تیرے شکر گزار ہے خداوند کہ تو نے ہم سب کو جہاں جہاں کہیں بھی ہم ہیں اپنی روح سے گیر رکھا ہے۔ یہ تیرا بھاری فضل ہے کہ تو نے ہم سب کو اس مقدس محفل میں اکٹھا کیا ہے۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں خداوند کہ اپنی روح کا تازہ مسا ہر اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے پر نچھاور فرما دے، اور اپنے خادم کو بھی روح سے بھر کر پورے زور سے اپنا کلام خداوند پیش کرنے کے لیے استعمال ملا۔ ہم اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، کثرت سے برکت پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، کہ میرے راہ دے وچ او ہے روشنی کردہ، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں میرے نہایتی عزیزوں، بیٹوں بیٹیوں، بہنوں بھائیوں، بزرگوں اور سب ایمانداروں، شالوم۔ آج کیونکہ ایسٹر کے بعد پہلا اتوار ہے اور ایسٹر کی عبادت تو فضل بشارتی گروپ کے پلیٹ فارم سے نہ ہوئی، کیونکہ میرا ہی دن ہوتا ہے اور اس لیے میں ایبسنٹ تھا، اس لیے خادم کی طرف سے پوری فضل بشارتی گروپ فیملی کو ایسٹر کی لکھ لکھ ودائیاں۔ خداوند آپ سب کو ایسٹر کی ڈھیروں برکات سے نوازے، یہی خادم کی دعا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने रोमियो के नाम लिखा, उसमें से हमने उसके 8वें बाब की 31वीं आयत से पढ़ा है। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पौलुस क्या कहना चाहता है और क्यों वो लिख रहा है। असल में इस खत के लिखने का मकसद जो था पौलुस का, वो रोम की कलीसिया से उसने मुलाकात करनी थी, यानी उनको मिलने के लिए आना था या इरादा रखता था, तो उसके लिए उनकी तैयारी कर रहा है और अपने जो उसके मंसूबाजात हैं उनसे भी आगाह कर रहा है इस पूरे खत में। उसका मेन मकसद था कि वो कुछ देर रोम की कलीसिया के दरमियान रहे, कलाम की मुनादी करे, और फिर वहां से, यानी रोम की कलीसिया की मदद से, वो, ये नेदरलैंड के करीब स्पेन है, वहां चला जाए। अब पुराने ऐदनामे या जो बाइबल में वो हस्पानिया लिखा हुआ है, तो हस्पानिया जो था वो बिब्लिकल नेम है, लेकिन आज का नाम जो है उसका स्पेन है। तो पौलुस रसूल रोम की कलीसिया से मिलकर स्पेन जाना चाहता है वाया नेदरलैंड। अब वहां की कलीसिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, रोमन जो कलीसिया थी, कि कलीसिया रोमन एम्पायर से, उनकी प्रोसिक्यूशन की वजह से बहुत सारा कलीसिया के एक हिस्सा जो था, जो ईमानदार थे, वो उस मुल्क से निकल गए और फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो वापस रोम वापस आ गए। लेकिन एक बड़ा जो ग्रोथ था, ये ग्रुप जो था, वो रोम में ही मौजूद था। अब जब वो वापस आए हैं, जो परसिक्यूटेड चर्च था, जो फ्ली कर गए थे, हिजरत कर गए थे, वापस आ गए, और जो चर्च मौजूद था रोम में, उनके दरमियान भी थोड़ी सी वो थी रंजिश, और वो अपने अपने तरीके से इबादत भी करते और रसूमात भी अदा करते थे। पौलुस रसूल उसको भी मद्देनजर रखते हुए वहां आना चाहता है और उनको इनकरेज भी करना चाहता है। अगर हम चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बाब पढ़ते हैं, तो वहां ये क्लैरिटी हमें नजर आती है कि ये सब कुछ क्या माजरा था। अब यहां जब हमने 8वें बाब की ये चंद आयात पढ़ी हैं, तो इसमें पौलुस रसूल उस बड़ी गवाही के लिए जो आज से एक हफ्ता पहले हमने सेलिब्रेट की है, और इसके बारे में पौलुस रसूल अपने तमाम खतूत में बड़े जोर से ये बयान करता है, और इस पे वो तबलीग भी करता है और ईमानदारों के ईमान को मजबूत भी करता है, उस वक्त की कलीसियाओं को भी और आज की कलीसियाओं के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है। और वो पैगाम ये कि जब खुदा, यावे, कादर मुतले खुदा जो है, जब वो हमारी तरफ है, तो हमारा कौन मुखालिफ है। ये वो लोगों को तसल्ली दे रहा है और उन पे वाजे कर रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परसिक्यूशन से डरने की जरूरत नहीं है, रोमी हुकूमत से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम पिछला बाब जो है, ये से पहले की आयत पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल तो ये कह रहा है कि उसने तो हमें अपने ले पालक बेटे और बेटियां बना लिया है, उसने हमें अपने बेटे के कीमती खून से खरीद लिया है, उसके इकलौते बेटे ने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया है। और जब इतनी बड़ी बात हो गई है, तो फिर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने हमें
اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی۔ اب لے پالک سے مطلب ہوتا ہے، انگلش میں اس کا لفظ ہے اڈاپشن، اس نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب اڈاپٹ کو آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اڈاپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ایک بچہ وہ کسی اور فیملی سے ہوتا ہے اور اس کو دوسری فیملی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتی ہے، وہ اپنا بچہ بنا لیتی ہے۔ تو خدا جو ہے اس نے ہمیں لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، یعنی ہم پہلے کسی اور خاندان میں تھے، اب خداوند نے ہمیں اپنے خاندان میں لے لیا ہے۔ پہلے ہم گناہ کی زندگی میں تھے، وہ ہمارا خاندان تھا، اب بیٹے کے قیمتی خون سے خرید کر اس نے ہمیں نئے خاندان میں شامل کر لیا ہے۔ اب وہ تو ہمارے ساتھ ہے، یعنی جب ہم کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ پچھلا خاندان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر نیا خاندان جو ہوتا ہے وہی اس کا خاندان ہوتا ہے اور وہی اس کا باپ ہوتا ہے، پرانا باپ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم گناہ کی زندگی سے، پولس رسول یہی کہہ رہا ہے آج کی کلیسیاؤں کو بھی، کہ ہم وہ گناہ والا جو ہمارا باپ تھا اس کو ہم نے، خدا نے اپنے بیٹے کے قیمتی خون سے وہ جو تھا وہاں سے چھڑا کر ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹے بنا لیا ہے، لے پالک بیٹے بنا لیا ہے۔ اس لیے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارا مخالف کون ہے، ہمیں جاننا اس چیز کا بہت ضروری ہے۔ اب جو اگلی بات جو پالوس رسول کلیسیا کو انکرج کر رہا ہے اور آج کی کلیسیاؤں کو بھی جو انکرج کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے ہمیں اڈاپٹ بھی کر لیا اور پھر ہماری خاطر، یعنی اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا اور ہماری خاطر اسے کیا کر دیا، دوسروں کے یعنی حاکموں کے جو رومنس تھے ان کے حوالے کر دیا۔ اور جب اس نے وہ ہمارے ساتھ ہے تو جو سب چیزیں جتنی بھی ہیں جو خدا کی ہیں، تو جب اس نے بیٹا ہمیں دے دیا، اپنی محبت ہم پر ظاہر کر دی، تو اس کے ساتھ ہمیں اور کیا کچھ نہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے اس کی بادشاہی کو تلاش کر لو، یہ تمام چیزیں تمہیں کیا ملیں گی، انعام میں مل جائیں گی۔ اب پولس رسول جو ہے کوئی ایک اور بڑی ہمت جو بتا رہا ہے کہ کون ہے جو ہم پر نالش کرے گا، کون ہم پر غصہ کرے گا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں سے جو خادمین کو تو نہیں، کلیسیاؤں سے، اور ان کو انکرج کرتا ہوں کہ بی اسٹرانگ، اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھو، آپ کسی سے کمتر نہیں ہیں۔ اور اس تو کہتا ہے کہ تم تو شاہی کہنوں کا فرقہ ہو اور تم تو مقدس قوم ہو، اور پھر تم اس کے بیٹے کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہو، تمہاری قیمت چکائی گئی ہے، روپے پیسے ڈالر یورو سے نہیں، بلکہ بے عیب برے اور خدا کے اکلوتے بیٹے کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہو، جو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنی بڑی قیمت خدا نے ہمارے لیے ادا کر دی ہے اور اس نے اپنا بیٹا بھی ہمارے لیے حوالے کر دیا، اور اس بیٹے نے کیا کیا، پھر اپنی جان فدیے کے طور پر ہمارے لیے دے دی، تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بڑی بات کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا، ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب ہم پرانا خاندان جو ہے وہ چھوڑ دیا، آدم آدم والا کام چھوڑ دیا، پہلا آدم، اب دوسرے آدم نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا ہے۔ یہاں پھر یاد کرا رہا ہے پولس رسول، کرنتھنس کی کلیسیا کو بھی لکھتا ہے کہ اگر مسیح نہیں مرا، دفن نہیں ہوا، عالم روا میں نہیں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، تو پھر ہماری منادی کرنا بھی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ یہاں پھر ایک بار رومن کلیسیا کو بھی یہ یاد کرا رہا ہے کہ مسیح یسوع وہ ہے جس کے قیمتی خون سے
तुम खरीदेगे। वो मर गया, और मर नहीं गया बल्कि वो मुर्दों में से भी जी उठा। और फिर वो मुर्दों में से सिर्फ नहीं जी उठा, वो आलम अरवाह में उतरा, और अब खुदा बाप यावे के दाने हाथ बैठा हुआ है, और वहां वो हमारी क्या करता है, शफात कर रहा है। यहां भी वो मसीह के जी उठने की मनादी कर रहा है, क्योंकि वो कहता है अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है। हमें भी ईमानदार होते हुए हमें मसीह के मरना, दफन होना, आलम राह में उतरना, जी उठना, और फिर जिंदा आसमान पर जाना, और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे होना, और फिर वापस आना, इसी की मनादी करनी है। और यही ईस्टर का पैगाम है। यही पौलुस रसूल इनकरेज कर रहा है रोमन की कलीसिया को भी और हम सबको भी। यूहन्ना रसूल भी अपने खत में लिखता है कि हमारा एक एडवोकेट है। वो कहते हैं जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं कर सकता, और अगर हमसे कोई गुनाह गलती हो जाती है तो लिखा है पहले खत में उसने, यूहन्ना ने, कि हमारा एडवोकेट है जो खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, वो हमारी शिफात करता है, साडे लिए तरले मिन्नत करता है, वो हमारा वकील है, वहां बैठा हुआ है। अगर हमसे खता हो जाती है तो खुदा बाप से कहता है ये अपने बेटे और बेटियां हैं, खता हो गई है, और अगर हम माफी चाहते हैं तो वो हमें माफ कर देता है। तो यहां भी पौलुस रसूल यही कर रहा है कि वो खुदा बाप के दाहिने जी उठकर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां हमारी क्या कर रहा है, शिफात कर रहा है। यानी हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी इल्तिजाओं को सुनता है, हमारे साथ है, वो इमैनुअल है। जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। वी शुड बी इनकरेज्ड। एवं ना निके 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 होया करो, बी स्ट्रांग। कहीं कोई परसिक्यूशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, असि सारी को हम टह पैने हैं। और उस लिख रहा है, जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि कौन कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। कौन? क्या मुसीबत, तंगी, जुल्म, या काल, या नंगापन, या खतरा, या तलवार? कौन? डरने की जरूरत नहीं है। इन चीजों का होना जरूर है। मसीह खुदावन ने खुद शागिर्दों से कहा कि ये तुम्हारे साथ होगा। उन्होंने मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ भी करेंगे। और आज अगर हमारे साथ होता है तो ही रोन ला पैने, हालो पा रहे साडा क्यों होया। तो उसके साथ तो देखो, जो पिछले हफ्ते उसके साथ हुआ, यरूशलेम की गलियों में उसके साथ क्या हुआ, उसके वो जो कचहरियों में क्या हुआ, 3-4 कचहरियों में गया, कोड़े पड़े, लान तान हुई, थूका गया, तमाचे पड़े, कील उसके हाथों में ठोंके गए, क्या कुछ ना हुआ। कांटों का ताज उसके सर पे रखा, स्लीप पे गाड़ दिया गया, क्या नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन फिर भी उसने कहा क्या बाप, इनको मुआफ कर, ये जानते ही नहीं क्या करते हैं। तो उसने कहा ये मेरे साथ करते हैं, ये तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन घबराना नहीं, डोंट बी अफ्रेड। मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इमैनुअल हूं। मैं तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, ना तुमसे कभी दस्तबरदार हूंगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, ये लफ्ज याद रखने हैं जो पौलुस रसूल कह रहा है कि कौन कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। और की ऐसा डरा लेंगे कि डर के ते असी सही मसीह तो लैदा हो जाएंगे। नेवर। हमें पता है कि अगर हमने जिंदगी है, अगर हमने हमेशा की जिंदगी हासिल की है तो मसीह के सबब से। अगर हम मसीह में हैं तो हमेशा की जिंदगी है। अगर मसीह में नहीं है तो अब्दी हलाकत है। तो हम अब्दी हलाकत की तरफ क्यों जाएंगे। मारो सानू, ला दो गाटे साडे, असी यसू नाड़ी रहना। हम उस बुढ़िया औरत की तरह करेंगे जिसको वो कन्विंस करते थे कि बुढ़िया तू अपना ईमान चेंज कर ले, मजहब चेंज कर ले, ये कर ले। उन्होंने कहा मनु कोई गल याद है कि रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा।
हमें सिर्फ ये याद रखना है। कोई अगर हमें ये कहे इधर तलवार रखी है कि चेंज हो जा, छड़ दे ये सुनू, तेरी जान बच जाए, कहेंगे ठीक है ले ला मेरी जान, नो प्रॉब्लम। मेरा जीना भी यीशु, मेरा मरना भी यीशु। मुझे यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, बाकी सब मुर्दा है और वो जल्द आने वाला है। इसलिए हमें कोई मुसीबत, कोई नंगापन, कोई खतरा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। ईमान में मजबूत रहा करें, इसी में जिंदगी है। आगे जाकर फिर पौलुस रसूल लिखता है रोमों कलीसिया को राज की, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा में यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, और ना कोई और मखलूक पावे, तीसरी मखलूक होवे। कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए कि उसने, उस मसीह ने, उस खुदा के इकलौते बेटे ने, उस मसाया ने, उस बेअब बर्रे ने हम सबको अपने कीमती खून से खरीद कर बाप के बेटे और बेटियां, और फिर कलाम में जब हम इसे पहली आयत में पढ़ते हैं तो हम, बड़ी जो दलेरी की बात है कि हम मसीह के हम मीरास हैं। जो कुछ मसीह दा साडा, बाप मसीह है, बाप साडा, सब कुछ साडा, जब यसू साडा है सब कुछ साडा है। तो फिर हमें और क्या चाहिए है मेरे जीजो? हम किस चीज की तलाश में हैं जब यसू हमारे साथ है? जब खुदा ने अपना बेटा हमें दे दिया तो बाकी सब कुछ हमें क्यों ना देगा? अभी हमने पढ़ा है उसने हमें हमारे उनके हवाले कर दिया और द्रेग ना किया, तो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा? तो बी इनकरेज्ड, दलेर रहा करें। मैं खादम होते हुए हमेशा दलेरी के लिए कहता हूं कि बी स्ट्रांग। ये छोटी 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 मुसीबतों से घबरा ना जाया करें कि वो दिन अड़ा हो गया, वो दिन आ हो गया, साढ़े ना भी आ होगा, तो ना कुछ नहीं होएगा, ना उनके साथ कुछ होगा। अगर वो मसीह की खातर मारे जाएंगे या मारी जाएगी तो उसके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। अगर वो मसीह की खातर मरता है या मरती है तो वो अमर हो गया या हो गई। तो अगर हम भी मसीह के नाम की खातर मरेंगे या हमें मार दिया जाएगा या हमारे साथ कुछ हो जाएगा, तो हमें डरने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि उसने हमारे नाम किताबे हयात में लिख रखे हैं। जब वो कहता है कि तुम शाही कहनाओं का फिरका हो, तो और क्या है? रॉयल फैमिली, रॉयल, यू आर रॉयल प्रीस्टहुड। तो बी इनकरेज। ना आपको मौत, ना कोई हुकूमत, ना तंगी, ना मुसीबत, ना काल, ये याद रखा करें आप, हमें कोई मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। क्योंकि मसीह मर गया किसकी खातर? हमारी खातर। मसीह दफन हो गया किसकी खातर? हमारी खातर। हमारे गुनाह भी उसके साथ दफन हो गए। मसीह आल मेरवाम उतर गया और फिर मसीह जी उठा, और उसके जी उठने के साथ हम भी जी उठे। और जो मसीह में है, कलाम यही कहता है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और फिर एक बहुत बड़ी बात, क्यों डरते हैं? वो यूहन्ना रसूल की मार्फ लिखी इंजील में लिखता है कि जहां मैं हूं तुम भी वहां हो, मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो इतनी बड़ी इंश्योरेंस है। तो फिर इन चीजों से हमें डरने की कोई जरूरत, यही पौलुस रसूल रोमियो को भी लिख रहा है और यही पौलुस रसूल हमें बता, और खुदा उनका कलाम भी हमें भी यही इनकरेज कर रहा है कि बी स्ट्रांग, मत घबराओ, कोई तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकता। ये सिर्फ जिस्म को मार सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को मार सकता है। जिस्म वाले से, मारने वाले से मत डरो, लेकिन क्योंकि ये जिस्म है, ये तो खाक है, खाक में मिल जाएगा। तो डरना तो उससे है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तो वो तो हमारा, जब लिखा है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालफ है? इसलिए पौलुस रसूल
कलीसिया, रोम की कलीसिया के दोनों ग्रुप्स को भी इनकरेज कर रहा है। पौलुस रसूल अपने साथ के तमाम कलीसियाओं को भी, आज की कलीसियाओं को भी इनकरेज कर। आज भी कलीसियाओं में बड़े तफरके हैं, पौलुस वो तफरके खत्म कर रहा है कि आप इस तरह इबादत करते हैं, आप इस तरह इबादत करते हैं। उन्हें नहीं, इनको छोड़ दो, आप खुदा की इबादत करें, आप यीशु नासरी को मद्देनजर रखें, आप खुदा की पाक रूह की हदायत से काम करें, अपने खुदामंद के नाम को जलाल दें, बाकी सब हेज है। और गाया करें कि यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। तो यहोवा का नाम सबसे आला है। यही आपकी आवाज होनी चाहिए, यही आपकी गवाही होनी चाहिए, और यही आप लोगों के सामने सच्चाई को लेके जाएं। जब सच्चाई आप लोगों तक लेके जाएंगे, फिर वो सच्चाई से वाकिफ होंगे और फिर सच्चाई उन्हें आजाद कर देगी। पहले आपको खुद सच्चाई से आशना होना जरूरी है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मेरे अजीजों, आई इनकरेज यू, डोंट बी अफ्रेड। पौलुस रसूल भी इनकरेज कर रहे हैं, मैं खुदा का दास होते भी आपको इनकरेज कर, खुदा के कलाम के वसीले से। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। इस फानी जिस्म के लिए वरी ना करो, कोई बात नहीं है, जान है जाए। हम यहां से, वो कहते हैं मैं यहां से रहना बजाय वहां रहना पसंद करता हूं। क्यों? उथे यसू है, उथे खुदा है, उथे ग्लोरी, उथे हालेलुया हालेलुया, मुकद्दसीन है, कैरुबीन है, फरिश्तगान है, जो खुदा बाप के सामने हर वक्त क्या करते हैं? हालेलुया 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 के नारे मारते हैं। तो वी शुड बी ओवर देयर। डोंट वरी, बी स्ट्रांग, ईमान में मजबूत रहो, खुदावन के यीशु मसीह के मरने, जी उठने और आने की गवाही देते रहा करें, अपने ईमान का इकरार करते रहा करें, जिंदा गवाही बनकर चलें। आप उसके एम्बेसडर हैं। यीशु नासरी के उसके कीमती और बेशबहा जो कीमती खून है, उससे खरीदे गए हैं। और खुदा ने, ये याद रखें, वो कहते हैं मैंने तुम्हें ले पालक बेटे और अडॉप्ट कर लिया है। मैंने इसलिए आपको अडॉप्शन के बारे में ज्यादा, क्या आपको उस खानदान से निकाल कर गुनाह वाले से अपने जो जलाली खानदान है उसमें शाम, तो इससे बड़ी और क्या हमारे लिए है? तो बी स्ट्रांग। खुदा हमें ये ईस्टर की जो जो मैसेज है कि मसीह मर गया, जी उठा, और पौलुस ने कहा अगर हम ये मनादी नहीं करते तो हमारी मनादी बेफायदा है। ये मनादी करना जरूरी है। सारी दुनिया मर गई, आने वाले भी मर जाएगी, लेकिन ये जो मनादी है कि मसीह मर गया, दफन हुआ, आलमिरवा में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है। वो कहते हैं अपने मुकद्दस शरीर से, कहते हैं देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। ये मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए खुद के अल्फाज हैं, हमें इनको याद रखना है। खुदामद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। यीशु मसीह मसाया जो मर गया, दफन हुआ, आलमिरवा में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर खुदा के दाहिने तरफ बैठा है, उसी के नाम से हम सबको बड़ी बरकत दे।